ہندوستان کی تقسیم دو نظریات یا کسی خطے کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ وہ صحرائے تھر کی بھی تقسیم تھی۔ تھر کا ایک بڑا حصہ انڈیا کو ملا، جبکہ کچھ حصہ پاکستان کے حصے میں بھی آیا۔ صحرا کی تقسیم میں متعدد قبائل اور خاندان بھی تقسیم ہو گئے۔ پاکستان کی کم و بیش 27 اقوام یا زبانیں ایسی ہیں جو آج معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ تقسیم ہونے والوں میں رباڑی قبیلہ بھی شامل ہے۔ ہماری آج کی تفتیش پاکستانی صحرائے تھر کے گرد گھومتی ہے، جس میں ہم تلاش کریں گے رباڑی قبیلے کو جو 7 صدیوں سے سیاہ لباس پہن کر اپنا سوگ منا رہا ہے۔ اس قبیلے کی تلاش کے لیے ہمیں کراچی سے کئی سو کلومیٹر دور صحرائے تھر میں آنا پڑا۔ آئیے تلاش کرتے ہیں اس قبیلے کو جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود سوگ میں مبتلا ہے۔ سیاہ لباس ہر معاشرے میں سوگ کی علامت تصور کیا جاتا ہے، خواہ وہ مشرقی معاشرہ ہو یا مغربی۔ لوگ اپنا غم یا احتجاج سیاہ پوش ہو کر ریکارڈ کراتے ہیں، مگر ہر سوگ کو بڑھانے کا ایک وقت ہوتا ہے یا ہر احتجاج کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ مگر ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جس کی عورت 7 صدیوں سے مسلسل سوگ میں مبتلا ہے۔ کم ہے، چلے گئے انڈیا، کوئی برانچ دیا چلے گئے، کوئی دیا، اور زیادہ کچھ میں۔ اس قبیلے سے ملنے کے لیے ایک طویل سفر کرنا ہوگا۔ کراچی سے صحرائے تھر کا ہمارا سفر رات گئے شروع ہوا۔ بڑی وجہ راستے کی گرمی سے خود کو بچانا تھا۔ اندرون شہر سے نیشنل ہائی وے پر آتے ہی اندازہ ہو گیا کہ آج کی رات شب برات ہے، یعنی مقدس رات ہے، جس کا ثبوت موٹر سائیکلوں کے یہ قافلے ہیں جو ٹھٹا جا رہے ہیں۔ ٹھٹا اولیاء کی سرزمین کہی جاتی ہے، جہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ 1.25 لاکھ اولیاء مدفون ہیں۔ یہ لوگ آج کی رات کسی نہ کسی بزرگ کے مزار پر گزاریں گے۔ ٹھٹا پیچھے رہ جانے کا احساس نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی کمی سے ہوا۔ رباڑی قبیلے کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس مشینی دور میں یہ لوگ پتھروں کے زمانے میں جی رہے ہیں اور یہ طرز زندگی ان کا اپنا اختیار کرتا ہے۔ بھوت نہ دیکھا تو دیکھ رباڑی، مطلب ایسے ہی بیچارے عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں۔ وہ داڑھی بڑی ہوتی ہے، مونچھیں بڑی رہتی ہیں، یا پٹکا یا پگڑی، یا اس کی جو نیچے جیسے ہماری قمیص ہوتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ قمیص نہیں پہنتے ہیں۔ ہماری سمر کی تھی، اور رباڑی کا کوئی تعلق ہمارے سے نہیں، کہتے ہیں رباڑی نہیں ہے۔ اس قبیلے کی تلاش دراصل 1 سال پہلے اس وقت شروع ہوئی تھی جب مجھے ایک ذاتی دورے پر تھر جانا ہوا۔ پاکستان کے آخری بڑے سرحدی شہر ننگر پارکر کے تاریخی مقامات دیکھتے ہوئے عجیب لباس میں ملبوس اس شخص کو دیکھا۔ فوٹو نکالا گیا، فوٹو نکالا گیا، فوٹو نکالو، فوٹو نکالو جی۔ کپڑے سب ایسے ہی پہنتے ہیں، سب یہی کپڑے پہنتے ہیں؟ نہیں، اور بھی پہنتے ہیں، سلوار قمیص، لیکن یہ کم لوگ پہنتے ہیں۔ یہ ہمارا پرانا لباس ہے۔ جی جی، بڑے بوڑھوں والا؟ بوڑھا والا۔ اس میں رنگ بھی پہنتے ہو یا خالی سفید ہی؟ نہ سفید ہی صرف؟ کیوں سفید کیوں؟ بس یہ ٹھیک ہے۔ تم لوگ؟ ہم لوگ کراچی سے ہیں۔ آپ کون ہو؟ میڈیا سے، ٹی وی سے۔ اچھا اچھا، دعا کرنا بیٹا کا بابا، مہربانی۔ راڑوں بھگت رباڑی سے یہ مختصر ملاقات ہی تھی جس نے سما کو تھر کا سفر کرنے پر مجبور کیا۔ ایسے قبیلے کی تلاش جس کے مرد عورتوں کے کپڑے پہنتے ہوں اور عورتیں شادی کے بعد سے آنکھ بند ہونے تک سیاہ لبادہ اوڑھ کر
सोग में रहें। रेबाड़ियों का आमतौर पे ये कहना होता है कि हमने दो सुमरों के मारे जाने के सोग में अपनी सेटल्ड लाइफ छोड़ी है। आइए एक बार फिर सफर का आगाज करते हैं। अभी हमारी मंजिल दूर है। ये सजावल के मेन बाजार की रात का मंजर है। सजावल ज़ेरी सिंध का अहम कारोबारी मरकज है जो गुज़िश्ता सैलाब में बुरी तरह मुतासिर हुआ, और ये है बदीन शहर। मालूम हुआ है कि कुछ रबाड़ी जिला बदीन के इलाके टंडो भागो में भी आबाद हैं। इन रबाड़ियों को दरअसल सिंधी रबाड़ी कहा जाता है। मैंने देखा है सारे रबाड़ी, उधर के भी देखे हैं, नगर के भी, और आप लोगों को भी देखा है। मूंछें बड़ी बड़ी, इसकी क्या? हाँ, ये हमारा रवाज है। अभी हमारा जो ये छोटा नस्ल है, ये दाढ़ी को साफी देता है। हमारे बुजुर्गों को, हमारे दादे को जिसी खुदा की खुदाई थी तो हम दाढ़ी नहीं लाते। मगर हमारी असल तलाश सोगी रबाड़ियों की है, जिन्हें थरी रबाड़ी कहते हैं। कराची से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर ये सुब मिठी शहर की है। थर पारकर दरअसल दो लफ्जों थर और पारकर का इम्तिजाज है। थर यानी सहरा और पारकर यानी उस पार, यानी दूसरी तरफ के हैं। वक्त के साथ थर और पारकर एक होकर थर पारकर बन गए। ये हमारा डेजर्ट का इलाका जो है, ये 22,500 बर्मा मील पे पाकिस्तान होने के बाद हमारे को मिला। ये जो तकसीम हुआ उसके पीछे, और 4.5 साल के हैं इसमें, समझा ना। हम 114 मील बिरात एरिया से इस तरफ बैठे हुए हैं, दक्षिण और उभर की तरफ। हमारे को इस तरफ राजस्थान, इस तरफ गुजरात और इस तरफ कच्छ 114 मील बैठे। गो के मिट्टी में शहरी जिंदगी ने खूब रंग जमाए हैं। बाजार मिनरल वाटर और शहरी मसनूआत से भरे हैं, और पक्की सड़कें दौड़ती मोटरों से। मगर तलाश करने वाली आंख से यहाँ कुदरत की रानाई नहीं छुप सकती। इंसानों से खौफजदा इन मोरों की नक्लो हरकत सुबह शाम देखी जा सकती है। मगर हमारी तलाश थर के मोर नहीं, बल्कि रबाड़ी कबीला है। इस उम्मीद पर कि शायद कोई भूला भटका रबाड़ी नजर आ जाए, मिट्टी शहर के कई चक्कर लगा डाले। मिट्टी में रबाड़ी तो ना मिले, मगर कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो थर की तरक्की के लिए कोशां हैं। रबाड़ियों की तलाश का दायरा मिट्टी शहर से बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं नगर पारकर का, जहां 1 साल पहले हमें राणो भगत रबाड़ी अपने रिवायती लिबास में मिला था। पारकर माना ये हमारे इस तरफ जो रण ऑफ कच्छ है, ये पहले समुंदर था, भरा हुआ था। हिन पार का हुन पार कर नगर एक हिंदी लफ्ज़ है। नगर माना कोई गांव या कस्बा या कोई लोगों के रहने की जगह। नगर पारकर में मालूम हुआ कि कुछ अरसे से रबाड़ियों ने नगर शहर में आना कम कर दिया है, या अगर वो आते हैं तो आम थरी लोगों के लिबास में आते हैं, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है। नगर पारकर में भी रबाड़ियों की तलाश में नाकामी रही, मगर जैन मजहब का वो तारीखी मंदिर नजर आ गया जिसे एक शाहकार कहा जाए तो बेजा ना होगा। कहा जाता है कि जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाले माली एतबार से बहुत मजबूत थे, और उनकी माली हैसियत इन मंदिरों से भी जाहिर होती है। मगर अब कहीं कहीं चाचा अली नवाज को थर की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। लगभग 100 बहारें देखने वाला यह बुजुर्ग अंग्रेज दौर में सरकारी मुलाजिम होता था, जिसके जिम्मे तकसीम के बाद हिजरत करके आने वालों और हिजरत से इनकार करने वालों के कवायफ मुरतब करना था। इस थरी इंसाइक्लोपीडिया ने जैन मजहब से ताल्लुक रखने वालों की पाकिस्तान से हिजरत भी देखी है और इन मंदिरों को आबाद भी देखा है। मैंने देखा
जहाँ आरती बारती होती थी, लोग बैठे रहते थे, भजन वाणी होती थी, ये मैंने देखा ये इस मंदिर में। और बहुत श्लोकों के साथ कचहरी किया हिंदू धर्म के ऊपर, ये चलेगी। ये सोता था। सानिया बाबरी मस्जिद के बाद सबसे ज्यादा नुकसान जैन मजहब के मंदिरों को हुआ, क्योंकि इनका कोई वाली वारिस नहीं था। यहाँ इस तरह के और भी मंदिर हैं जो तारीखी विरसा करार दिए जा सकते हैं। नगर पार्कर में वाक़ई ये जैन मंदिर आज ज़बूहाली का शिकार है, और ये मंदिर कहा जाता है कि तकरीबन 2000 साल पुराना है। और यहाँ ये मालूम हुआ है, लोगों का ये कहना है कि ये वो मुकाम है जहाँ से एक सुरंग निकाली गई है, और ये सुरंग का दूसरा हिस्सा घोड़ी के मंदिर में निकलता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर फासले पर है। नंगर पार्कर से 40 किलोमीटर दूर ये घोड़ी का मंदिर है, और ये है वो रास्ता जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका दूसरा सिरा नंगर पार्कर के मंदिर में निकलता है। लोगों का ख्याल है कि इन्हीं रास्तों को हंगामी हालत में इस्तेमाल किया जाता था, या खवातीन की एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आमदोरफ्त के लिए। इन शाहकार इमारतों के खालिक कौन लोग थे, और इनके पाकिस्तान से जाने की क्या वजह थी? इस सवाल का जवाब चाचा इंसाइक्लोपीडिया से ही लिया जाएगा। बस इस लोगों को कहा गया कि तुम्हारा धर्म नहीं रहेगा, चलो, तो चलेगी। किसने कहा? वो जो इसकी जमायत थी उसने। रबाड़ी कबीले की मौजूदगी और राणो भगत रबाड़ी के ठिकाने के शवाहिद आखिरकार हमने हासिल कर लिए। रबाड़ियों की पहली बस्ती नंगर पार्कर से कुछ किलोमीटर दूर पाक व हिंद सरहद की जानिब है। आइए चलते हैं, मगर उससे पहले चलते हैं एक वक्फे की जानिब।